students, welcome to social science class. We have started the new chapter, the nationalist movement from 1870 to 1947. In our previous video, we have discussed about the formation of Indian National Congress. It was formed by A.O. Hume, who was the retired British official, and the first president of the Indian National Congress was Vyomesh Chandra Banerjee, W.C. Banerjee. Firstly, it was under the moderates' impact, and after that, radicals took the command in their hands. Okay, so this is about the Indian National Congress. Today we are going to do partition of Bengal. We are going to discuss about this. What is the meaning of partition of Bengal? It means that Bengal is Bengal was divided into two parts. Do you know that the Bangladesh, जो country है Bangladesh, it was the part of India at that time, and because of Britishers, it was divided from our country. To weaken our nationalist movement, the Britishers attacked on Hindu-Muslim unity, and they just did that work to separate Hindus and Muslims. In Bengal, were so many Muslims, and just because of that, they divided it into two parts. जो मुस्लिम वाला एरिया था वो उन्होंने ईस्ट बंगाल बना दिया, and the other area is called West Bengal. Okay, here is the picture of Bengal. In this picture, you can see a big Bengal in a blue color. Okay, in 1904, Bengal is like that. Clear? And Britishers divided into two parts in 1905, and it looks like this. ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ईस्टर्न बंगाल, दूसरा वेस्टर्न बंगाल. अभी भी इंडिया में जो हमारे बंगाल का नाम है वो वेस्ट बंगाल ही है, अगर आपको पता हो, अगर आपने ध्यान से सुना हो या पढ़ा हो. इट इज़ कॉल्ड वेस्ट बंगाल, और हिंदी में पश्चिमी बंगाल ये कहा जाता है, बिकॉज जो दिस साइड इज ईस्ट एंड द अदर साइड इज वेस्ट. तो ब्रिटिशर्स ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, ईस्ट साइड के बंगाल को ईस्टर्न बंगाल, और जो बंगाल वेस्टर्न साइड पे था उसे वेस्टर्न बंगाल कहा जाता था. ओके, Britishers did this to weaken our unity, to separate Hindu and Muslims, but they gave an official reason for that. उन्होंने एक ऑफिशियल रीज़न, बहुत अच्छा सा एक एक्सक्यूज़ दिया, बहाना बनाया कि बंगाल was a big area and it is very much difficult to control that area or to collect revenue from that big area. So for the proper administration, we have to divide it into two parts. That's why we divided Bengal into two parts, western part and eastern part. Okay, but every Indian know about that truth कि why they did all these things. ठीक है, हर इंडियन को पता था the main reason. Okay, people know that the Britisher wanted to divide the Indian and rule. Therefore, there was protest against the
partition. Common public came in front to protest against Britishers. They raised their voice against this inhuman activity. That day was observed as day of mourning. Here the mourning means full of grief, full of misery, बहुत दुख से भरा हुआ. ठीक है, तो उस दिन को, जिस दिन इंडिया में बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, वो दिन डे ऑफ मॉर्निंग यानी कि दुख से भरा हुआ दिन माना गया. ओके. द स्वदेशी ऑफ one's own country, boycott and national education were opted as tools for achieving Swaraj by the radicals. We have read about radicals, that who were radicals? Radicals have faith in action. They want to do something to get their own kingdom. अपना राज्य, अपना फ्रीडम लेने के लिए वो एक्शंस में बिलीव करते थे. ओके. सो उन्होंने कौन से एक्शंस को यूज़ किया? स्वदेशी यानी कि अपनी चीज़ों को यूज़ किया जाए. ओके. बायकॉट, किसका बायकॉट? फॉरेन गुड्स का. दे बायकॉट फॉरेन गुड्स एंड नेशनल एजुकेशन, that our people get education. At that time education was very much costly और सभी लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती थी. तो रेडिकल्स का जो मेन मोटिव ये था कि हर इंडियन को एजुकेशन मिले. ओके. सो दे ऑप्टेड these 3 tools for achieving स्वराज: स्वदेशी, boycott and national education. Okay. Indians boycotted foreign goods and used only Indian goods. And Bal Gangadhar Tilak gave the slogan, Swaraj is my birthright and I shall have it. स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं वो लेकर रहूंगा. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं वो लेकर रहूंगा. ये किसने दिया स्लोगन? दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय बाल गंगाधर तिलक. ओके. स्वराज मीन्स सेल्फ रूल. हमारा ही हमारी कंट्री पर रूल हो, कोई फॉरेनर हम पर रूल ना करे. ये बाल गंगाधर तिलक का क्या था? स्लोगन था. कि लोगों को मोटिवेट करना, लोगों में नेशनैलिटी को स्प्रेड करना. That we are not here to be a slave, we can rule ourselves, so we have to raise our voice for the self rule. Okay. Students also played an important role in these movements by boycotting classes, picketing shops selling foreign goods. Many women also joined procession and picketing. Students ने बहुत ज़्यादा important role play किया. How? They just boycotted the British schools. जो ब्रिटिश स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चे थे उन्होंने स्कूल को बायकॉट कर दिया, उन्होंने स्कूल में जाना बंद कर दिया. ठीक है. और जो शॉप्स थी जहाँ पर फॉरेन गुड्स सेल किया जाता था, उन शॉप्स में पिकटिंग अप मीन्स लूटना शुरू कर दिया. वहाँ से सामान निकालना उन शॉप्स में से स्टार्ट कर दिया. और बहुत सी विमेन ने भी इसमें इस प्रोसेशन में ज्वाइनिंग की. वो बहुत ज़्यादा आगे आई. ठीक है. दे ऑल्सो स्टार्टेड पिकिंग अप shops those selling foreign goods. Okay. So common person also involved in this activity or in this movement. The radical group among the Congress encouraged love for Swadeshi good, participation in mass rallies to boycott foreign goods, boycott of government services, school and colleges, surrender of titles conferred by British. रेडिकल्स ने किन चीज़ों को
स्प्रेड किया, किन को मोटिवेट किया कि हमें ये चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। फर्स्टली कि वी हैव टू यूज़ स्वदेशी थिंग्स, जो इंडिया में बनी हैं, जो इंडियन लोगों ने बनाई हैं, हमें उन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर पीपल। ओके, एंड दे ऑल्सो एनकरेज the common persons to participate in mass rallies to boycott foreign goods। जो रैलीज, जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें एनकरेज किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हों, ज़्यादा से ज़्यादा रैली में पार्टिसिपेट करें। कौन सी रैलीज में? जिन रैलीज में फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया जा रहा है, लोग फॉरेन गुड्स को उनकी बॉन फायर कर देते थे, यानी कि एक जगह पर कलेक्ट करके जला देते थे उन्हें। तो इन चीज़ों के लिए उन्होंने पब्लिक को एनकरेज किया। द मेन मोटिव इज दैट नॉट टू यूज़ फॉरेन गुड्स। इस चीज़ का मेन मोटिव क्या था? चीज़ों को जलाना मेन मोटिव नहीं था। मेन मोटिव था कि अपनी इंडियन चीज़ों को यूज़ किया जाए और फॉरेन गुड्स को यूज़ ना किया जाए। ओके, डिस्करेज करना फॉरेन गुड्स को, ये मेन मोटिव था। बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल एंड कॉलेज, एंड इट्स मेन मोटिव इज ऑल्सो टू एनकरेज इंडियन एजुकेशन एंड एनकरेज इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज द मेन मोटिव कि गवर्नमेंट सर्विसेज को बायकॉट करो, कि अगर हम बायकॉट कर देंगे तो वो लोग अपने आप, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी लोगों की कि वो वर्क कर सके प्रॉपरली। दे अपॉइंटेड इंडियंस टू डू देयर वर्क। तो रेडिकल्स का ये एक पॉलिसी थी कि अगर हम गवर्नमेंट सर्विसेज का बायकॉट कर देंगे, ब्रिटिशर्स का वर्क नहीं करेंगे, तो वो अपने आप रूल हमारे हैंड में दे देंगे। ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस को भी बायकॉट करो एंड सरेंडर द टाइटल्स। जो ब्रिटिशर्स ने टाइटल दिए हैं, ब्रिटिशर्स डिफरेंट टाइटल देते थे फॉर द डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी को सर कह दिया, ओके, कोई और टाइटल दे दिया, राजा बोल दिया, तो इस तरह के टाइटल्स दिए जाते थे उन्हें बाकी लोगों से अलग शो करने के लिए कि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो रेडिकल्स ने ये भी मना किया कि हम कोई भी टाइटल नहीं लेंगे। वी सरेंडर द टाइटल्स दैट आर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने जो भी टाइटल्स दिए हैं, जो भी अवार्ड्स दिए हैं, वो वापस कर दिए जाएं। ओके, स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड फ्रॉम बंगाल टू महाराष्ट्र एंड पंजाब। स्वदेशी मूवमेंट पूरे इंडिया में स्प्रेड हुई, बंगाल में, महाराष्ट्र, पंजाब, in every area. The government suppressed the movement. During this, Dadabhai Naoroji presided over the Calcutta session of Congress in 1906. इस टाइम पर कैलकटा सेशन हुआ, कांग्रेस का कैलकटा में मीटिंग रखी गई, सेशन हुआ 1906 में। ओके, और उस सेशन में स्वराज के लिए कॉल किया गया कि वी नीड स्वराज। एक नारा दिया गया कि हमें स्वराज चाहिए, हमें अपना सेल्फ रूल चाहिए। ओके, वी नीड स्वराज। तो स्वराज के लिए कॉल किया 1906 में। ओके, द डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स केम अहेड ड्यूरिंग द सूरत सेशन इन 1907। 1907 में जब कांग्रेस की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्लियरली विजिबल हुआ दैट radicals and moderates were opposing each other. ठीक है, moderates have full faith in Britishers and they just prayer and give petition and proposals. Okay, but radicals want to take action. So there is a great difference between both the पर्सन्स, जो दोनों थिंकिंग वाले लोग थे, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और ये 1907 की मीटिंग में सबको दिख गया, शो हो गया। देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी एंड द टू ग्रुप्स पार्टेड वेज। उस सेशन में पार्टी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। मॉडरेट्स वर लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले
and Firoz Shah Mehta. And radicals were they were called as extremists, and they were led by Lal Bal Pal. Lal means Lala Lajpat Rai, Bal means Bal Gangadhar Tilak, and Paul means Vipin Chandra Paul. ओके, तो रेडिकल्स जिन्हें ब्रिटिशर एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, जिसे हम आतंकवादी या उग्रवादी कह देते हैं हिंदी में, तो दोज आर एक्सट्रीमिस्ट एंड they were led by Lal Bal Pal, and moderates were led by Gopal Krishna Gokhale and Firoz Shah Mehta. Okay, so this is about partition of Bengal. It shows the thinking of Britishers, that from the very beginning they just following divide and rule policy. स्टार्टिंग से ही वो डिवाइड और रूल की पॉलिसी को यूज़ कर रहे थे. फर्स्टली दे यूज इट इन वॉर्स, जो बैटल्स हुई थी, बैटल ऑफ कार्नेटिक और एंग्लो मैसूर वॉर, इन सब वॉर्स में भी उन्होंने यही डिवाइड एंड रूल को यूज़ किया. एंड ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट दे ऑल्सो यूज दिस पॉलिसी. ओके, सो दिस इज अबाउट द मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ था और जिसके कारण हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट को फ्लो मिला, वो आगे बड़ी स्ट्रांग हुई. ओके, सो दिस इज फॉर टुडे एंड होप यू ऑल विल रीड दिस. आप सभी से रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल प्लीज़ आस्क. ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.